رہے ہیں. اور بہت سارے تو ایسے نوجوان ہیں جو آج بھی اپنی ماں کو برتن منجواتے ہوئے وہ کام کرواتے ہیں اور خود بیٹھ کر کے سگریٹ پیتے ہیں, نشہ کرتے ہیں, اور انہیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا کہ میری ماں ہمارے لیے کیا کر رہی ہے, اور وہ اپنی جوانی کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ذرا ہمارے ملک کی پوزیشن آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر اس وقت دنیا کی نمائندگی کرنے والی پوزیشن ہے. 100 کے رینکس کے اندر ہندوستان کی 5 بڑی یونیورسٹی کا نام آتا ہے. مجھ سے آج میڈیا والوں نے ایک کوشچن کیا, اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مسلمان کی مالی پوزیشن اتنی اچھی نہیں کہ ہائر ایجوکیشن حاصل کر سکے, تو کیسے وہ جائے گا؟ میں نے کہا یاد رکھیے, اللہ نے کوئی کام اور کوئی ذمہ داری ایسی نہیں دی جو بندہ پورا نہ کر سکتا ہو. آپ اپنے تعیشات کی چیزوں کو کم کر دیں اور اپنا پورا پیسہ اپنے بچے کی تعلیم پر لگائیں, تو آپ سوچو, ذرا اندازہ لگاؤ, جہاں علم کی طرف پیش رفت کرنا ہے وہاں صرف علم ہی حاصل نہیں کرنا, علم کی طرف قدم ہی نہیں بڑھانا, بلکہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا ہے. فاستبقوا الخیرات, بھلائی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکل جاؤ, ایجوکیشن کے اندر دنیا سے آگے نکل جاؤ, اس لیے کہ تمہارا تعلق رب سے جڑا ہوا ہے. اگر تم نے علم کی طرف پیش قدمی کی, علم کی طرف تم نے قدم بڑھایا, اور پھر چند دنوں علم کا سفر طے کرنے کے بعد اگر اپنے مقصد کو تم نے فراموش کر دیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارا سفر تمہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا. کیا یہ بات سچ نہیں کہ بعد ان کے ماں باپ کا خواب اور ان کا اپنا خواب چکنا چور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ اس لیے بہت سارے نوجوان میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کا ڈریم تھا وہ IAS بنے, جن کا ڈریم تھا وہ ڈاکٹر بنے, جن کا ڈریم تھا وہ ریسرچ اسکالر بنے, جن کا ڈریم تھا وہ اچھا عالم دین بنے, لیکن ان کی غلط صحبتوں کی بنیاد پر اور ان کی غلط روش کی بنیاد پر ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا, اور پھر وہ ایسے بکھرے کہ دنیا سے آج اتنے پیچھے ہو گئے کہ ان کے ساتھی جنہوں نے مقصد کو پرائیورٹی دی وہ آج ان کے سامنے بہت ترقی کی طرف گامزن نظر آتے ہیں, اور ان کا شمار پسماندہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے, اور ان کا شمار اور ان کی پوزیشن, ان کا نام و نشان کہیں لیتا ہوا کوئی دنیا کا انسان نظر نہیں آتا. اگر آپ بیدار ہو گئے, اگر نوجوان بیدار ہو گیا, اپنے محلوں کے اندر, اپنے علاقوں کے اندر, اپنے اسکول کے اندر, اپنے کالج کے اندر, اپنی یونیورسٹی کے اندر, وہ صرف یہ نہ سوچے کہ مجھے پاس ہونا ہے, مجھے ڈگری حاصل کرنی ہے, وہ ہمیشہ یہ سوچے مجھے ٹاپر بننا ہے, مجھے ملک کی خدمت کرنی ہے, مجھے انسانوں کی خدمت کرنی ہے, مجھے دنیا کے اندر اسلام کا نام بھی روشن کرنا ہے, ماں باپ کا نام بھی روشن کرنا ہے. میں دنیا کے اندر اپنے مقصد کو بھول نہیں سکتا, اور محنت و مشقت کرے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا وہ ماضی جو 700 سال پہلے تھا پھر وہ ماضی پلٹ کر کے آ سکتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, کیوں لوگ آپ کا استحصال کرتے ہیں؟ بہت سارے وہ لوگ جو ڈرگز کے سپلائر ہیں ایسے نوجوانوں کو تلاش کرتے ہیں جو ڈرگ سپلائی کریں. وہ سپلائر کیسے بن جاتے ہیں؟ وہ نشے کے عادی کیسے بن جاتے ہیں؟ چند ٹکوں کی لالچ میں, جہالت کی وجہ سے, اچھے ماحول کے نہ ہونے کی وجہ سے, اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے شوق کی وجہ سے, اور اللہ کے خوف سے عاری ہونے کی وجہ سے, آخرت کے ڈر سے بے باک ہونے کی وجہ سے, بے نیاز ہونے کی وجہ سے ان کا قدم پھسل جاتا ہے,
और लोग उनका इस्तेहसाल करते हैं। नतीजतन ड्रग का जो सप्लायर होता है, ड्रग बेचने वाला, वो तो पकड़ा जाता है, लेकिन ड्रग का जो असल डीलर है वो तो ऐश कदों के अंदर अपनी जिंदगी गुजारता नजर आता है। क्यों ये सारे काम होते हैं? जहालत की वजह से। बदअखलाक होने की वजह से। आज मैं आपको चंद जरूरी बातें आपकी समातों के हवाले करना चाहूंगा, और सिर्फ मर्ज नहीं बताऊंगा, बल्कि इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में उस मर्ज का इलाज भी बताने की इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा, ताकि आज जब यहां से उठें आप तो एक नए जज्बे के साथ उठें। इसलिए कि किसी कौम का नौजवान जब बेदार हो जाता है तो उस कौम में इनकलाब पैदा हो जाता है और उस कौम की तकदीर संवर जाती है। आइए सबसे पहले दो अजीम खिताबात आपने एजुकेशन के सिलसिले में सुने। मैं उसी एजुकेशन के हवाले से एक बात आपके सामने पेश करूं, लेकिन उस बात को पेश करने से पहले मैं हदिया तबरीक पेश करता हूं खानकाहे माररा के उस अजीम सपूत को जिसने ये अजीम नारा अता फरमाया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। इस नारे में जाजिबियत भी है, इस नारे में पैगाम भी है, और इस नारे में दर्स भी है। अगर हम अपनी अय्याशी को छोड़कर आधी रोटी खाकर अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें तो मैं यकीन के साथ कहता हूं हमारे मुआशरे में कोई जाहिल नहीं रह सकता। आइए मैं आपको बताऊं, कल रईसुल मुफस्सिरीन ने अपने खिताब में फरमाया कि मैं तो आज तक अपने आप को तालिबे इल्म ही महसूस करता हूं, और उसके बाद उन्होंने एक हदीस कोट की कि गहवारे से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, यह हुजूर का फरमान है। अब आइए इस फरमान पर अमल बात में भी अर्ज करने जा रहा हूं, इस वाक़े की रोशनी में अपनी कैफियत को महसूस करें और अपने अंदर झांक करके देखें। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह बिस्तरे मर्ग पर हैं। अब रूह निकलेगी तब रूह निकलेगी, एक अजीब कैफियत से दो चार हैं। ऐसी सिचुएशन में उनके हम आसर एक आलिम तशरीफ लाए, बीमार मिजाज पुरसिश के लिए आए, इयादत के लिए आए। पूछा अबू यूसुफ कैसे हो? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद सिचुएशन यह है कि बस सकरात जैसी पोजीशन के अब रूह निकलेगी तब रूह निकलेगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में इमाम अबू यूसुफ उठ करके बैठ जाते हैं और आने वाले उस आलिम से पूछते हैं कि जरा ये बताइए कि रमी जमार सवारी पर अफजल है या पैदल अफजल है? वो आलिम फरमाते हैं अबू यूसुफ तुम्हारी तबीयत मुज़ाकरे की नहीं है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। इरशाद फरमाते हैं आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरे नबी ने कहा है कि कब्र की गोद तक पहुंचते पहुंचते इल्म हासिल करते रहो। तो अभी मैं कब्र के अंदर नहीं पहुंचा हूं, सोचता हूं कि कुछ इल्म हासिल करके कब्र तक पहुंचूं ताकि मेरे नबी के इरशाद पर अमल हो जाए। आज तवानाई के बावजूद, वक्त होने के बावजूद, सोर्सेज ऑफ एजुकेशन होने के बावजूद आज हमारी नौजवान नस्ल तालीम की तरफ नहीं बढ़ रही। आज भी हमारे पास ऐसे सोर्सेज हैं कि आज बच्चा आला तालीम हासिल करके अपना मकाम बना सकता है। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो स्ट्रीट लाइट के अंदर बैठकर जिन्होंने एजुकेशन हासिल किया और उसके बाद आज आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनकर के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारे ऐसे उलमा को हमने देखा जिन्होंने एक एक वक्त का खाना खाकर इल्म हासिल किया, चटाई पर सोए, पत्थर को तकिया बनाया और उसके बाद इल्म हासिल करके दुनिया को उन्होंने फायदा पहुंचाया। मुझे याद आ रहा है हजरत इमाम मालिक का एक कौल कि हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन रात के वक्त
किताब लिख रहे थे, किताब का मुताला कर रहे थे, गुनूदगी तारी हुई, पानी चेहरे पर छिड़का और उस किताब को हटाकर दूसरी किताब ले ली। फिर गुनूदगी तारी हुई, पानी चेहरे पर छिड़का, उस किताब को किनारे किया, दूसरे सब्जेक्ट की किताब ले ली। शागिर्द ने पूछा, हुजूर जब इतनी नींद आ रही है तो थोड़ा सो जाए ना। जवाब सुनिए, बड़ा आसान लगता है इन उलमा को आपको देखना और सुनना और दर्सगाहों के अंदर इनका दर्स देना, आपको लगता है इनको कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन सुनो। इमाम मालिक ने जवाब दिया, तुम मुझे सोने के लिए कह रहे हो? कौम तो इसलिए मजे से सो रही है कि हम उनकी रहनुमाई करेंगे। अगर हमने उनकी रहनुमाई के लिए इल्म और मुताला नहीं किया तो कल सुबह उनके मसले का जवाब कौन देगा? ये कुर्बानियां हैं। आप जरा सोचो, आज मस्जिदों के अंदर पूरा कुरान सुनाने वाले हाफिज कुरान, उनको पूरा कुरान सुना देते हैं जो अलिफ बा ता सा नहीं जानते। कभी आपने सोचा इन बच्चों ने कुरान याद करने के अंदर कितनी कुर्बानियां पेश की? कभी आपको हज के लिए जाना हो और हज के अरकान और मसाइल के सिलसिले में अदम वाकिफियत की बुनियाद पर लाखों रुपए के खर्च करने के बावजूद एक मामूली सी गलती की बुनियाद पर आप हज के फर्ज से सुबुकदोश नहीं हो सकते और आपका हज कंप्लीट नहीं होगा। कौन रहनुमाई करता है? ये उलमा रहनुमाई करते हैं। लेकिन सोच बिगाड़ दी गई, मेंटेलिटी बिगाड़ दी गई, फिक्र के ऊपर यलगार आई और आज का पैदाइशी मुसलमान उलमा पर क्रिटिसाइज कर रहा है, उलमा के लिए बदगोई कर रहा है। अरे सुनो, किसी कब्रिस्तान के अंदर अगर कोई जाकर फातिहा पढ़े, मगफिरत की दुआ करे, कॉन्फिडेंशियली नहीं कहा जा सकता कि जिसके लिए मगफिरत की दुआ की गई है उसकी मगफिरत हो जाएगी। कब्रिस्तान में जाकर एक ऑर्डिनरी इंसान अगर जाकर के दुआ करे, कॉन्फिडेंशियली नहीं कहा जा सकता कि उसकी मगफिरत हो जाएगी। लेकिन हुजूर फरमाते हैं, किसी कब्रिस्तान के करीब से अगर कोई आलिम दीन गुजर जाए तो अल्लाह 40 रोज तक के लिए कब्र वालों पर से अजाब को उठा लेता है। तुम उनकी नाकदरी कर रहे हो, तुम साजिशों के शिकार हो रहे हो, नाइबीन रसूल का मजाक उड़ा रहे हो, इसलिए कि तुम इल्म नहीं तुम्हारे पास इल्म नहीं। तो आज जरूरत है दीनी एजुकेशन की तरफ भी बढ़ो और दुनियावी एजुकेशन की तरफ भी बढ़ो। लेकिन यहां ये मैं बात अर्ज कर दूं, ये नहीं कि हमारी कौम सिर्फ दुनियावी एजुकेशन के अंदर इफलास की शिकार है, बल्कि हमारी कौम दुनियावी एजुकेशन और दीनी एजुकेशन, दोनों एजुकेशन में मुफलिस है। मुफलिस कुछ नहीं जानती हमारी कौम।